ابھی ہمارے بھائی عمر فاروق صاحب نعت پڑھ رہے تھے، واہ حسین واہ، بڑی شان ہے۔ ایک شاعر نے یوں بات کہہ دی، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ بالکل مختصر میں 2-3 باتیں بس۔ میں بھی تھکا ہوا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ حضرات علماء کرام تشریف فرمائے ہیں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا پیشوا ہے نانا حسین کا۔ اونچی بات سے کہتے سبحان اللہ۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا پیشوا ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی بھی نہیں تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی بھی نہیں تھی حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ شہدائے اسلام کانفرنس کے نام سے آپ کا یہ جلسہ منعقد ہے۔ علماء کرام نے، اکابرین عظام نے، حضرات صحابہ کرام نے اس اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس نے قربانی دی، اپنے خون کو دین اسلام کے لیے اللہ کے راستے میں لگا دیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ دین اسلام ہمارے لیے اتنا سستا بنا ہوا ہے، کھلونا بنا رکھا ہے، لیکن میرے دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، قرآن مجید کا پہلا سپارہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے۔ قرآن کھول کے دیکھ لیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں، قرآن کو تو ہم سب مانتے ہیں، سب کے سب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے۔ الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں 6666 آیات ہیں۔ تمام آیات پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی ایک آیت کا بھی انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصابئین جو بے دین ہیں، والنصارى اور جو نصرانی ہیں، جو عیسائی ہیں، یہودیوں کو بھی اللہ نے کہہ دیا، بے دینوں کو بھی اللہ نے کہہ دیا، عیسائیوں کو بھی اللہ نے کہہ دیا۔ غرض بے دین کے اندر، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی لوگ ایمان کسی بھی چیز پر رکھتے ہیں، کوئی پتھر کو مانتا ہے، کوئی سورج کو خدا کہتا ہے، کوئی کسی چیز کو سجدہ کرتا ہے، تمام کے تمام لوگ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک مان لیں۔ جو ہم بچوں کو ایمان مجمل پڑھاتے ہیں، ایمان مفصل پڑھاتے ہیں، یہ 7 چیزیں آمنت باللہ، اللہ کو ایک مان لیا جائے، ورسولہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھا جائے، اللہ کے فرشتوں کو مانا جائے، اللہ کی کتابوں کو مانا جائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھا جائے، قیامت کے دن پر ایمان رکھا جائے، دوبارہ پیدا ہونے پر ایمان رکھا جائے۔ میری بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سن لے، جس شخص نے 7 چیزوں پر اپنا ایمان رکھ لیا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ مسلمان ہے۔ جس نے اللہ کو ایک مانا وہ مسلمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھا، آقا علیہ السلام کی نبوت کے آخری ہونے پر ایمان رکھا، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھا، قیامت کے دن کو بھی مان لیا، اور انسان پر اللہ نے جو حالات ڈالنے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، جسے تقدیر کہتے ہیں، جس نے تقدیر پر بھی ایمان رکھ لیا، والبعث بعد الموت، دوبارہ پیدا ہونے پر ایمان رکھ لیا، تو ایمان مفصل پر جس کا ایمان ہے، من آمن باللہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھے، والیوم الآخر، قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھے، اللہ فرماتے ہیں فلہم اجرہم، ان کا اجر اللہ کے پاس ہوگا، ان کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہودیوں نے بھی اگر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، وہ یہودی بھی اللہ تعالیٰ کا، اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ کے نبی کو آخری نبی مان لیں، یہ کلمہ پڑھ لیں، اللہ ان کو بھی جنت دے دے گا۔ اور مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والے اس کلمے کو پڑھ کے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ بے دین اور غیر مذہب لوگ، وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد
रसूलुल्लाह जो मैं पढ़ता हूँ, जो आप पढ़ते हैं, हजरत बिलाल ने जिसको पढ़ा था, हजरत हैदर कर्रार ने जिसको पढ़ा था, मैदान करबला के अंदर नवासा रसूल ये कलमा पढ़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए चले गए। ये कलमा जिस शख्स ने भी पढ़ लिया, अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उसका ईमान सच्चा रहा, उसका दीन सच्चा रहा। कलमा इखलास से पढ़ के वो दुनिया से चला गया तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया जर्रा बराबर भी अगर ईमान होगा वो शख्स जन्नत में चला जाएगा। लेकिन मेरे लिए क्या है, आज मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करता जो मेरे मसलक पे नहीं है, उसको मैं मुसलमान नहीं मानता। जो मेरे काबिरीन को नहीं मानता मैं उसको मुसलमान नहीं मानता। अगर कोई देवबंदी है वो अपने दीन को देवबंदियत में बंद कर रहा है, अगर कोई बरेलवी है वो बरेलवियत में अपने दीन को बंद कर रहा है, अगर कोई वहाबी है वहाबियत में दीन को बंद कर रहा है। मैं आपसे पूछता हुआ चला जाऊं, क्या देवबंदी या सुन्नी या वहाबी कुरान को नहीं मानते? क्या वो एक कलमा नहीं पढ़ते? क्या उनका कलमा कोई और है, उनका कुरान कोई और है, उनकी मसाजिद कोई और है, उनका किताब कोई और है, उनका मजहब कोई और है? नहीं नहीं, सुन्नी भी यही कलमा पढ़ेगा, देवबंदी भी यही कलमा पढ़ेगा। और एक और बात करता चला जाऊं, 25वां सिपारा है, सूरत शूरा है और आयत नंबर 13 है। कुरान उठा के देख लो, इधर उधर की बातें नहीं सुनाता, अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ, किसी पीर फकीर की बातें नहीं, हीर राजा का किस्सा नहीं है, ये किसी वारिस शाह का कलाम नहीं है, अल्लाह का कलाम है। 25वां सिपारा सूरह शूरा है, आयत नंबर 13। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं ववस्सैना इब्राहीमा ववस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू बी। अल्लाह फरमाते हैं हमने इस दीन की वसीयत की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, तमाम अंबिया को, इस उम्मत को भी अल्लाह ने वसीयत की अन अकीमुद्दीन, अपने दीन पर डट जाओ, पक्के हो जाओ, अपने दीन पर पक्के हो जाओ, वला ततफर्रकू फी, इसमें तफरकाबाजी ना डालना, इसमें तफरके ना हो जाना, इसमें फिरका बंदियां ना बना लेना। जिसने भी कलमा पढ़ा है वो मुसलमान हो जाए, मुसलमान होकर अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देंगे, अल्लाह ताला उसको सीधा जन्नत का रास्ता दे देंगे। इसलिए कुरान ने खुला अकीदा पेश किया है। सहाबा किराम का कौन सा अकीदा था, देवबंदी वाला, सुन्नी वाला या वहाबी वाला? मैं आपसे पूछ लूं, इमाम हुसैन का कौन सा अकीदा था? और क़यामत तो उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक कलमा पढ़ने वाला दुनिया के अंदर मौजूद है, अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया के अंदर जब तक कोई मौजूद है, अल्लाह क़यामत बर्पा नहीं करेंगे। जब अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया से उठ जाएगा, जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान टूट जाएगा, सारा निजाम दरम बरम हो जाएगा। मैं सवाल ये कर लूं, वो आखिरी कलमा पढ़ने वाला सुन्नी होगा, वाबी होगा या देवबंदी होगा? कौन होगा? कौन होगा बताइए जरा मुझे। ये कुरान जो हम पढ़ते हैं कौन से मजहब का है? सुन्नियों का, देवबंदियों का, वहाबियों का? किसका ये कुरान है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की जब बारी आती है, सुन्नी भी तैयार है, देवबंदी भी तैयार है, वहाबी भी तैयार है, सब के सब लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक और बात भी आपके सामने करता चला जाऊं, आप अपने बच्चे को दाखिल करवाते हैं, स्कूल में चले जाते हैं, या कोई बीमार हो जाए, अच्छा डॉक्टर तलाश करते हैं, कपड़े सिलवाने हैं, बेहतरीन दर्जी तलाश करते हैं, बिल्डिंग बनानी है, अच्छा मिस्त्री तलाश करते हैं, नक्शा बनवाना है, इंजीनियर तलाश करते हैं। उस वक्त ये सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं? भाई मैंने क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना इलाज करवाना है, वो डॉक्टर सुन्नी है, वहाबी है, देवबंदी है, शिया है, कोई नहीं पूछता भाई मेरा इलाज होना चाहिए। वो जब अपने बच्चे को दाखिल करवाने की बारी आती है, किसी दुकान से सौदा सलफ लेने की बारी आती है, क्यों नहीं पूछते भाई कौन सा मसलक है, तेरा तबलीगी मसलक है या अंगूठे चूमने वाला मसलक है? अगर तू सुन्नी है तुझसे हम सौदा लेंगे, अगर तू देवबंदी है तुझसे सौदा नहीं लेते। कभी पूछा आप लोगों ने बाजार में जाके किसी डॉक्टर के, हॉस्पिटल के डॉक्टर से कभी पूछा? कभी स्कूल के प्रिंसिपल से कभी पूछा? नहीं पूछते। कभी दर्जी मिस्त्री डॉक्टर से कोई नहीं पूछता। ये सारी लड़ाई मस्जिद में आके क्यों? कि ये देवबंदियों की मस्जिद, ये वहाबियों की मस्जिद, ये सुन्नियों की मस्जिद, सारा का सारा बिगाड़ यहाँ पैदा करना है। या तो कोई नमाज पढ़ता नहीं है, अगर कोई भूले भटके नमाज पढ़ने के लिए आ जाए तो उसे देखते हैं ये किसके तरीके पे नमाज पढ़ रहा है, भाई तेरी नमाज ही नहीं हो रही, तू जा वापस अपने घर। हमारा हाल है या नहीं है? हमारा हाल ये है या नहीं है? अल्लाह ताला ने
जन्नत को इतना बड़ा बना दिया जो आखिरी जन्नत ही होगा इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत उसे मिलेगी। वो जन्नत मेरी है या आपकी है? वो अल्लाह की जन्नत है। नूर जहाँ रमज़ान के महीने में 27वीं रात को फौत हो गई। मौलाना तारक जमील साहब से किसी ने पूछ लिया, हज़रत वो तो सारी ज़िंदगी गाने गाती रही, सारी ज़िंदगी गुलकारी अदाकारी करती रही और वो रमज़ान के महीने में फौत हो गई। रमज़ान में जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, जन्नत के दरवाजे खुले हुए, वो जहन्नम में जाएगी या जन्नत में जाएगी? हज़रत ने मुस्कुरा के फरमाया, अल्लाह पे मुकदमा करो, अल्लाह पे मुकदमा करो। अल्लाह ने रमज़ान के महीने में उसे मौत क्यों दे दी? ये अल्लाह के फैसले हैं। क़ासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक गैर मजहब रहा करता था, एक हिंदू रहा करता था। हजरत उसे लाला जी के नाम से पुकारा करते थे। वो एक मरतबा कहीं से आ रहा था, लाला जी कहाँ से आ रहे हो, लाला जी कहाँ से आ रहे हो? कहने लगे, हजरत आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत है, आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत है। हजरत से मुलाकात करने के लिए आता था, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, मुलाकात करने के लिए आता था। लेकिन हजरत ने देखा ये मुझसे मोहब्बत करता है, कभी उसको ये नहीं कहा तू मुसलमान हो जा, कभी ये नहीं कहा तू कलमा पढ़ ले। अपने अखलाक दिखाए हैं, अपना किरदार दिखाया है, अपने मुंह की मिठास दिखाई है, प्यारे प्यारे बोल उसे बताए हैं। वो इतना मोहब्बत में गर्विदा हो गया, चंद दिन के बाद उसकी वफात हो गई, दुनिया से चला गया। क़ासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा वो जन्नत के अंदर टहल रहा है। लाला जी आप जन्नत में कैसे आ गए? आप तो मुसलमान नहीं थे, कुरान को नहीं मानते थे। वो लाला जी कहने लगे, वो हिंदू मजहब रखने वाला कहने लगा, हजरत आपसे मुझे मोहब्बत थी, आप अल्लाह का कुरान पढ़ते थे, आप नमाज़ें पढ़ते थे, मुझे आपका दीन बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मैं कबूल इसलिए नहीं करता था, मेरे घर वाले निकाल देंगे, ये माशरा मेरे साथ क्या करेगा? अल्लाह की कसम मरने से चंद लम्हे पहले अल्लाह ने मुझे कलमे की दौलत दी, मैंने कलमा पढ़ा और सीधा मैं जन्नत में आ गया। सारी ज़िंदगी हिंदू रहने वाला जन्नत में जा सकता है, हम मुसलमान सुन्नी वाबी देवबंदी अल्लाह के सामने सजदा करके जन्नत में नहीं जा सकते। खुदा ना अपना सीना कुशादा रखें, अपना जहन कुशादा रखें। बस ये कह दे जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका मामला अल्लाह के साथ है। अगर उसकी अकीदा ख़राब है, कुरान से टकराता है, कुरान को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के नबी को नहीं मानता, अलल ऐलान कह दिया जाएगा या काफिर है, ये काफिर है, पक्का दुश्मन इस्लाम है। लेकिन अगर वो मुसलमान है, सजदा अल्लाह के लिए कर रहा, मस्जिद में अल्लाह की रज़ा के लिए आ रहा, कुरान की तिलावत अलिफ लाम मीम दालिकल किताबु ला रैब फीह, सुबह कुरान उठा के यासीन वल कुरान, वो किसकी रज़ा के लिए पढ़ रहा है? वो सर पे टोपी रख के मस्जिद के लिए जो आ रहा, किसके लिए आ रहा है? आज हमें लड़ाया जा रहा है, सुन्नी के पीछे न जाना, वहाबी के पीछे न जाना, वो किसके पीछे जाए? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे, हम मुसलमानों का ईमान है, कुर्बे क़यामत में आएंगे। कौन से फितने में आएंगे? सुन्नियों के पास, वहाबियों के पास, देवबंदियों के पास, किसके पास आएंगे? आप बता दें मुझे, किसके पास आएंगे? हजरत इमाम महदी अलैहि रिज़वान तशरीफ लाएंगे, किसके पास आएंगे? कौन सा मज़हब होगा, कौन सा फ़िरका होगा? और देवबंदियत को इतना सा मादूद कर दे, बरेलवियत को इतना सा मादूद कर दे। जो लोग बरेलवियत से बाहर हैं उनका कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं। जो देवबंदियत से बाहर है, पूरी दुनिया के अंदर कितने लोग हैं देवबंदी नहीं, सुन्नी नहीं है, वहाबी नहीं है, अल्लाह को एक मानते हैं, कुरान ये पढ़ते, नमाज़ें पढ़ते, उनके बारे में क्या है? सारे पक्के काफिर नहीं। अल्लाह ने अपने दीन इस्लाम को इतना कुशादा रखा, इतना वसी रखा। एक सहाबी काफिरों की तरफ से लड़ रहे हैं और अचानक आप अलैहिस्सलाम के पास आए, कहने लगे कि अगर मैं कलमा पढ़ लूँ, मुसलमान हो जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप हमारे दीन के अंदर भाई बन जाएंगे। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, मैं अब क्या करूँ? मुझे बताइए क्या करूँ? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तो जिहाद हो रहा है, लड़ाई हो रही है, काफिरों से लड़ो, मैं लड़ते हुए शहीद हो जाऊँ, क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। वो शख्स काफिरों की तरफ से निकला, कलमा पढ़ा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उनके अमाल नामे में कोई नमाज नहीं, कुरान की कोई तिलावत नहीं, मस्जिद के कोई सजदे नहीं, कोई नेकी नहीं है, कलमा पढ़ा है, काफिरों से निकल के मुसलमानों की तरफ आ गया, काफिरों से लड़ाई करते हुए शहीद हो गए। शुहदा की लाशों को देखा गया, सहाबा किराम हैरान, ये किसकी लाश है? अल्लाह के नबी ये पहचानी नहीं जानी, ये किसकी लाश है? आप अलैहिस्सलाम ने देखा तो ये तो वही सहाबी है अभी चंद लम्हे पहले जो मुसलमान हो गए काफिरों से लड़ते हुए शहीद हो गए। आका अलैहिस्सलातु
वस्सलाम मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, अगरचे इनका रंग सियाह है लेकिन मैं देख रहा हूँ अल्लाह ने इनका चेहरा 14वीं की रात से भी ज्यादा रोशन कर दिया। कहाँ जाएंगे हम? किसको गुमराह कर रहे हैं? मेरे एक बोल की वजह से फलाह के पीछे नमाज नहीं होती, मेरे एक बोल की वजह से कोई शख्स नमाज छोड़ दे, कौन जिम्मेदार उसका? किसी का बच्चा कुरान पढ़ना छोड़ दे, उसका कौन जिम्मेदार? कोई शख्स मस्जिद से दूर हो जाए, उसका कौन जिम्मेदार? खुदा का वास्ता देके कहता हूँ, छोड़ दो लड़ाइयों को, लाओ अल्लाह की तरफ, लाओ मस्जिदों की तरफ। देवबंदी है, देवबंदी मस्जिद में ले आए, सुन्नी है, सुन्नी मस्जिद में लाए, वहाबी है, वहाबी मस्जिद में लाए, अपने अपने मसलक में लाए, अल्लाह की मोहब्बत सिखाए, अल्लाह के नबी का किरदार सिखाए सारे मुसलमान। किसका इख्तलाफ है? अभी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है 7 सितंबर, आपके सामने ये बोर्ड लगा हुआ, 7 सितंबर बरोज़ मंगल मीनार पाकिस्तान पे एक अजीम शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। उसी की याद में ये ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, इंशाअल्लाह जाएंगे सबके सब। उसी कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ था, सबके सब जाएंगे इंशाअल्लाह, काफ़िले की शक्ल में जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के दिफा के लिए जाएंगे। वहाँ कौन होंगे? देवबंदी होंगे, सुन्नी होंगे, वहाबी होंगे, अरब वाले होंगे। मेरी तो मक्के मदीने में नमाज नहीं होती, वे तो फला मसलक के हैं, छोड़ दो इन लड़ाइयों को, बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। तालिबान एक थे, कोई फिरका नहीं था, कोई उनके अंदर इस तरह के इख्तलाफात नहीं थे, और 60 मुल्कों की कुफ्फार की फौजों को शिकस्त दे के इस्लामी हुकूमत का ऐलान किया या नहीं किया? हम आपस में लड़ रहे हैं, ये मस्जिद, ये मस्जिद, ये मस्जिद। कितनी बड़ी आपने मस्जिद बना दी, इसको आबाद कौन करेगा? 4 नमाजी यहाँ पे दूसरी मस्जिद बना दी, 4 नमाजी वहाँ पे तीसरी मस्जिद बना दी, 4 नमाजी वहाँ पे, मस्जिदें बनाई जाओ, नमाजी लाए, नमाजी लाए। थोड़ा सा होश कर ले, थोड़ा सा समझ ले दीन इस्लाम को। ये दीन इस्लाम इस तरह नहीं मिला। इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटवा दी, अपने बच्चों को, अपने लाडलों को, अपने शहजादों को शहीद करवा दिया। कितनी कुर्बानियाँ लगी इस दीन के लिए, पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानी लगी। क्या क्या आपके सामने रखूँ, बस दर्द दिल यही है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक हो जाए मुसलमान, एक हो जाए हरम की पासबानी के लिए। एक मुसलमान अगर बन जाए तो कुफार की कौन सी ताकत है जो इनके सामने ठहर सके। अगर मैं कोई गलत बात करूं तो आप मुझे टोक दें, आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने कुरान के सामने, कुरान की आयत आपके सामने पेश की, कुरान से दलील पेश की, मैंने और भी दलाइल पेश की, कोई इख्तिलाफी बात बताए? आज हमने, मुझे अपनी नमाज का पता नहीं, नमाज का पता है कितने फ़र्ज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, कितनी सुन्नतें हैं, सजदे में क्या पढ़ना है, सजदे में कोई गलती होगी तो कैसे नमाज होगी, ख़त्म हो जाएगी, इन चीज़ों का किसी को पता नहीं। शादी हो जाए, तलाक के कितने मसाइल हैं, किसी को पता है? घर में ज़िंदगी कैसी गुजारनी है, किसी को पता है? नमाज में आके तकबीर कह के हाथ कैसे बांधने हैं, क्या कुछ पढ़ना है और क्या तसव्वुरात में रखना है, किसी को पता है? मेरी नमाज हो रही है या नहीं हो रही, किसी को पता है? मेरी पाकी नापाकी के मसाइल का पता है? किसी को कुछ पता नहीं। और हम दीन से बिल्कुल कोरा हैं, बिल्कुल हमें कोई पता नहीं, बिल्कुल जिहालत में है। लेकिन इतना ज़रूर पता होता है फलां मौलवी के पीछे नमाज, इतना ज़रूर पता होता है। बस आखिरी जुमला, एक नौजवान मस्जिद में आया, नमाज पढ़ी, टोपी उतार के नमाज पढ़ी, बाबा जी कुर्सी बैठे, पुत्र तेरी नमाज नहीं हुई, कहते आना ज़रा, और टोपी क्यों नहीं पहनी, तेरी नमाज नहीं हुई। वो नौजवान भी कोई तकड़ा था, कहने लगा बाबा जी आपने नमाज पढ़ी? हाँ जी मैंने पढ़ ली। आपकी हो गई है? पुत्र है तो मैंने भी नहीं पता, और तेन अपनी नमाज का नहीं पता तो मेरी नमाज का फतवा, तेरी नमाज ही नहीं। सजदा तो रख दिया ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ारों सजदों पे देता है निजात तुझको। अल्लाह के सामने जो आ गया वो कहाँ जाएगा? अल्लाह को ये सजदा ही बड़ा महबूब है, ये सजदा ही बड़ा महबूब है। इसलिए लड़ाइयों को ख़त्म करें, अपनी अपनी मसाजिदों को आबाद करें, अपने सजदों को आबाद करें, अल्लाह के घर को आबाद करेंगे। इंशाअल्लाह हम ये फ़िज़ा कायम करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का सबूत देंगे तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा, क़यामत का मंजर भी हमारे लिए बन जाएगा, आखिरत में निजात का सबब भी हो जाएगा। इंशाअल्लाह करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई तो नहीं करेंगे, मुसलमानों की मोहब्बत एक दूसरे के अपने दिलों में रखेंगे, और ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में सब के सब शरीक होंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन अज़म करता है कि हम 7 सितंबर बरोज़ मंगल असर की नमाज के बाद मीनार पाकिस्तान पे जब घूमने के लिए तो चले जाते हैं,
اس منگل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے جائیں گے. سب عزم کرتے ہیں انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت. آخری نعرہ کر دیں ہاتھ بلند کر کے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اب ہمارے مدرسۃ السازی کے ناظم اعلیٰ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالحنان صاحب حفظہ اللہ ورعاہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, حضرت دعا فرما دیں. اور دعا کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے حضرت نے لنگر کا بھی انتظام کیا گیا ہے. بھاگ دوڑ نہیں, مسجد کا تقدس کا خیال رکھنا ہے. ادھر ہی صفوں میں بیٹھ جائیں.